بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 7، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ تو ان کے والد کا نام جہش تھا۔ اس سے پہلے جو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن جہش، ٹھیک۔ اور یہ جو ہے 7 نمبر پر اللہ کے رسول کی بیوی، یہ ہے زینب بنت جہش۔ تو گویا کہ دونوں بہن بھائی ہیں، یعنی جو خزیمہ زینب بنت خزیمہ ہے ان کے شوہر وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ اور جہش جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جہش جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ پھوپا۔ تو یہ دونوں بیویاں جو ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، یہ نسب باپ کے نسب کے اعتبار سے قریش نہیں ہے، انہوں نے بتلایا نا ابھی، بنو سعد میں سے ہے، قریش نہیں ہے، لیکن ان کا ماں کا جو نسب ہے وہ قریش ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا جو ماں کا نسب ہے وہ قریش ہے، بلکہ بنو ہاشم کے اندر ہے۔ ان کی جو والدہ ہے زینب رضی اللہ عنہا کی امیمہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی ہیں۔ اسی طرح جہش کا نام ایک بار اڑائے گا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں، کہ ان کے شوہر کا نام جو ہے وہ عبید اللہ بن جہش تھا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر جہش کی 3 اولاد ہیں، ایک عبداللہ بن جہش، زینب بنت جہش، اور تیسرے عبید اللہ بن جہش، یہ تینوں جو ہے بہن بھائی ہیں۔ تو ساتھی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، تو ان کا خاندان بنو سعد، ان کی پیدائش 17 قبل نبوت اور 594 عیسوی۔ ان کے پہلے شوہر کا نام تھا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے۔ ان کا تذکرہ بھی ہم نے پچھلے سبق کے اندر تفصیل سے کرا تھا۔ اور جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ پر بھی 2 ویڈیو بنی تھی خاص طور، اس میں ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی وجہ سے 2 ویڈیو ہو گئی تھی۔ ان کا نکاح جو ہے 5 ہجری کے اندر ہوا، 627 عیسوی میں۔ نکاح کی مدت تقریباً 5 سال کچھ مہینے ہیں، 5 سال کچھ مہینے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر رہیں۔ ان کی وفات 20 ہجری کے اندر ہوئی اور 641 عیسوی کے اندر۔ بتلایا نے پچھلے سبق کے اندر کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال کریں۔ تو ان میں جو ہے سب سے پہلے 20 عیسوی کے اندر سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ سودا رضی اللہ عنہ کا 22 میں ہوا ہے اور ان کا 20 کے اندر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے انتقال جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا ہوا، مدینے کے اندر ہی دفن ہوئی جنت البقیع کے اندر، اور ان کی نماز جنازہ عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اور ان سے حدیث جو روایت ہیں وہ 11 حدیث روایت ہیں۔ اور ان سے نکاح کا مقصد جو ہے رسم کو توڑنا تھا، یعنی گود لیا ہوا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے نا، اس کا گویا کہ شریعت کے اندر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک اجنبی کی طرح ہے۔ یعنی آپ اس کو محبت دے سکتے ہو، پیار دے سکتے ہو، لیکن کیا ہے اس کے جو سارے احکام ہوں گے وہ اجنبی والے ہی احکام ہوں گے۔ کیونکہ اگر اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی ہے، بیٹے نے طلاق دے دی بیوی کو، یا جو بیٹے کا انتقال ہو گیا، سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا اگر حقیقی بیٹا ہے۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ نے جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی، تو اب کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اللہ کے رسول ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بہو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول ہچکچائے بھی تھوڑا تھا، کیونکہ سماج کے خلاف چلنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، آدمی چاہنے کے باوجود بھی جلدی سے جو ہے سماج کے خلاف نہیں چل پاتا، وہاں دین کو بھی بھول جاتا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان پر جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول سے کیا، اور قرآن پاک کے اندر اس کو نازل فرمایا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ یہ ان سے نکاح کرنے کا مقصد بھی جو ہے اس رسم کو توڑنا، یہ بتلانا کہ گود لے ہوئے بیٹا جو ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر کئی احکام اس کے نازل فرمائے۔ ایک تو آپ اس کو باپ کا نام نہیں دے سکتے، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی کہ آپ انہیں زید بن محمد نہیں کہہ سکتے، زید بن حارثہ ہی کہنا پڑے گا، حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب ہوں گے۔
पाल लो, पाल सकते हो, गोद ले सकते हो, लेकिन गोद लेने के बाद जो बहुत शरीयत के बड़े अहकाम मुश्किल हैं। नंबर 8, जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा, इनके वालिद का नाम हारिस है, इनका खानदान बनुल मुस्तलिक, और इनकी पैदाइश 1 साल कबल नबूवत 609 ईस्वी के अंदर। इनके पहले शोहर का नाम है मुसाफा, मुसाफा बिन सफवान, और ये निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह हुआ 5 हिजरी के अंदर 627 ईस्वी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर ये तकरीबन 5 साल रही है भी। उनकी वफात जो है 50 हिजरी के अंदर हुई 670 ईस्वी, और इनकी वफात भी मदीने के अंदर हुई, और जन्नतुल बकी के अंदर ही जो है ये दफन है। इनका नमाज जनाजा जो है मरवान ने पढ़ाया, मरवान बिन हकम, जिसने जो है हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा पढ़ाया, मदीना का जो हाकिम था, उसी ने जो है जुबैर रजी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा भी जो है मरवान बिन हकम ने पढ़ाया। 7 हदीसें इनसे मरवी हैं, और इनसे निकाह करने का की वजह शेख ज़करिया साहब ने भी जो है फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि 100 घराने की आज़ादी थी, बनुल मुस्तलिक के 100 घराने आज़ाद होकर आए, तकरीबन इसमें 700 आदमी थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लिया, तो तमाम साहबा ने जो उनके कैदी थे 700 आदमी तकरीबन, सबको आज़ाद कर दिया। कि क्यों कि इनका ताल्लुक किससे हो गया? अल्लाह के रसूल से। सबके सब क्या अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार बन गए, अल्लाह के रसूल के ससुराली बन गए, इसलिए सबने जो है उनको आज़ाद कर दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल कहते जब भी आज़ाद कर देते, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ता, दिल पे जोर पड़ता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता जोड़ लिया, तो उन्हें जो है इस पर आसानी हो गई, उन्होंने सबको आज़ाद कर दिया। उसके अलावा और वजह ये भी थी कि बनुल मुस्तलिक जो है नरम पड़ गए। जुबैर रजी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद बनुल मुस्तलिक ने फिर कभी साजिश ही नहीं करी अल्लाह के रसूल के खिलाफ। उससे पहले जो मुस्तकिल मदीने के अंदर जो है बनुल मुस्तलिक अल्लाह के रसूल के खिलाफ साजिशें करते रहा करते थे। नंबर 9, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, जो अबू सुफियान की बेटी हैं। इनके वालिद का नाम जो अबू सुफियान है, मशहूर साहबी हैं ये भी। और अबू जहल के मरने के बाद मक्का की सरदारी अबू सुफियान ने संभाली, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल लड़ते रहे जब तक मुसलमान नहीं हुए। फतेह मक्का के अंदर जाकर मुसलमान हुए। उससे पहले गज़वे उहद, उसमें भी जो है सरदार अबू सुफियान बनकर आए। खंदक हुई, उसमें भी जो अबू सुफियान सरदार बनकर आए। सुलह हुदैबिया हुई, उसमें भी अबू सुफियान जो है सरदार थे। फतेह मक्का में जब हुई तो उस वक्त जो है बाद में मजबूरन मुसलमान हो गए। तो ये उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है वालिद अबू सुफियान, इनका कबीला बनु उमैया, बनु मखजूम, जैसे हमने बताया ना बनु मखजूम बड़ा पावरफुल कबीला था, ऐसे ही बनु उमैया भी जो है पावरफुल कबीला था। बनु पहले सरदारी बनु मखजूम के पास थी, अबू जहल सरदार था। बनु मखजूम के बाद जो है बनु उमैया के अंदर सरदारी आई। इसी तरह इनकी पैदाइश जो है 16 कबल नबूवत 594 ईस्वी के अंदर। इनके पहले शोहर का नाम जो है उबैदुल्लाह बिन जैश था। दोनों हजरात उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, उबैदुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों हजरात जो है हिजरत करके हफ्शा गए। हफ्शा में जाकर उबैदुल्लाह बिन जैश को जो है शराब की लत थी, क्योंकि उस वक्त शराब आम थी। मुसलमान होने के बावजूद भी जो है लोग शराब पिया करते थे। उस वक्त हराम शराब नहीं हुई थी, और किसी को ज्यादा लत होती, क्योंकि इस्लाम ने मना भी इसलिए करा कि एक तो वैसे बुरी चीज है, दूसरी ये ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाती है। तो चीज बुरी ना भी हो ना, उसकी लत जो है वही बुरी चीज होती है। बहुत सारे हजरात को चाय पीने की लत होती है, चाय बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसकी लत जो है वो बुरी चीज है। तो जो किसी की चीज की लत हो तो जो है बहुत खतरनाक होती है बहरहाल। तो इसी तरह उबैदुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह बहरहाल ये उबैदुल्लाह बिन जैश जो है ये जब हफ्शा गए तो इनको कुछ ईसाई दोस्त मिल गए, जिन्होंने शराब जो है इनको ऑफर की, तो उनके साथ दोस्ती हो गए। फिर जो है ये इस्लाम से फिर गए और मुर्तद हो गए, और इसी हालत के अंदर इनका इंतकाल हो गया बहरहाल। वो वाक़या हमने इनका उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के तज़किरे में बयान कर दिया था। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह 7 हिजरी 629 ईस्वी के अंदर, और अल्लाह के रसूल के निकाह में तकरीबन 3.5 साल 3 साल 6 महीने तकरीबन जो है अल्लाह के रसूल के निकाह में रही। वफात का साल 44 हिजरी 565 ईस्वी है। दफन जो है मदीने के अंदर जन्नतुल बकी में, भी मदीने में। इनका नमाज जनाजा जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। इनसे हदीसें जो है 65 हदीसें रिवायत हैं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से 65 हदीसें
रिवायत है। इनसे निकाह का मकसद जो है बनु उमैया को माइल करना था, जैसे बनु मखदूम को और बनु मुसल्लिक को माइल करना था, ऐसे ही जो है बनु उमैया को भी माइल करना था। जब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हो गया अल्लाह के रसूल, तो अबू सुफियान उसके बाद जो है लड़ने के लिए कभी नहीं आए। 7 हिजरी के अंदर निकाह हुआ। जो गज़वा उहद, गज़वा खंदक और जो है सुलह हुदैबिया सब 7 हिजरी से पहले की बात है। उसके बाद फतेह मक्का हुआ तो अबू सुफियान पहले से नरम पड़ गए। हालांकि उस वक्त जो है कुफार की थोड़ी हालत भी कमजोर थी, लेकिन क्या है अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है पहले ही मुसलमान हो गए आकर। तो ये जो अल्लाह के रसूल ने फार्मूला अपनाया गोया कि ये भी वहां पे इसने काम करा, गोया कि अबू सुफियान फिर मुसलमान हो गए अब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद। इनसे निकाह करने की यही वजह जो है खासतौर थी। 10वें नंबर की बीवी हैं अल्लाह के रसूल की सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा। इनके वालिद का नाम है हुवै, सफिया बिन हुवै, हुवै बिन अख्तब। इनका खानदान बनु हारून, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून अलैहिस्सलाम नबी, उन्हीं के खानदान में से हैं। तो यहूदी खानदान था इनका। जो गज़वे खैबर हुआ यहूदियों से, उसी गज़वे के अंदर सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है कैद होकर आई। उनका वाक़या जो है उस वक्त हमने बतलाया भी था तफसील से। तो ये बनु हारून के अंदर थे, यहूदी खानदान था इनका। बाद में जो है सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गई और अल्लाह के रसूल के निकाह में आ गई। इनके पैदाइश 1 नबवी, जिस साल अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए उसी साल इनकी पैदाइश हुई है, 610 ईस्वी के अंदर। इनके 2 निकाह हुए इससे पहले, सलाम बिन मुश्किम, किनाना बिन अबी हकीक, 2 नाम हमने इनके लिख दिए, दोनों शोहर के नाम। हमने एक बात यही बतलाई थी कि जिस वक्त इनका निकाह अल्लाह के रसूल से हुआ उस वक्त 16 साल चंद महीने इनकी उम्र थी सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा की। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर शेख साहब ने लिखा है कि सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो 17 साल की भी पूरी जो है नहीं हुई थी। इससे ये पता चलता है यहूदी भी जो है कम उम्र के अंदर अपनी बच्चों की निकाह उस जमाने में कर दिया करते थे। यानी तकरीबन 16.5 साल की उम्र में 2 मरतबा बेवा हो गई, 1 मरतबा नहीं बल्कि कितनी मरतबा, 2 मरतबा जो है सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। इनका निकाह भी 7 हिजरी के अंदर हुआ, 629 ईस्वी के अंदर। मुद्दत निकाह 3 साल 3 महीने तकरीबन। और इनकी वफात इनकी वफात जो है 50 हिजरी 670 ईस्वी के अंदर। इनकी वफात भी जो मदीने के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर जो है दफन हुई। इनकी नमाज जनाजा भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही पढ़ाई है। और इनसे 10 हदीसें मरवी हैं। और इनके वजह, इनसे निकाह करने की वजह भी जो है खैबर वालों को नरम करना था। जब यहूदी जो थे, यहूदियों ने तो बाद में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की, लेकिन खैबर के जो यहूद थे नरम पड़ गए। उन्होंने फिर उसके बाद सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के बाद उन्होंने भी जो है कभी अल्लाह के रसूल से जो है मुखालफत नहीं की, उनसे कभी लड़ाई और उनसे साजिशें नहीं करी। इसी तरह 11वीं बीवी मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके वालिद का नाम जो है हारिस है और ये खानदान बनु आलान। इनकी पैदाइश 18 साल कब्ल नबूवत 592 ईस्वी। इनके पहले शोहर का नाम है अबू रहम, बाद किताबों के अंदर रहम भी लिखा है खाली, और बाद किताबों के अंदर अबू रहम जो है इनका नाम लिखा है। इनका निकाह जो है 7 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल से हुआ और ये आखिरी निकाह था अल्लाह के रसूल का 629 ईस्वी के अंदर। इनकी मुद्दत निकाह तकरीबन 3 साल जो है अल्लाह के रसूल के निकाह में रही है। इनकी वफात जो है 51 हिजरी के अंदर 671 ईस्वी में। इनकी वफात जो है मक्का के अंदर हुई, जो मकाम शरफ के अंदर हमने पहले ये बतलाया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए, एक तो हुदैबिया के मौके पर जब मक्का में उम्रा नहीं करने दिया, फिर अगले साल तय हुआ था कि आप अगले साल जो है उम्रा करेंगे। तो उम्रा कज़ा जो करने गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, तो मक्का में जाने से पहले ही जो मकाम शरफ पर जो है निकाह हुआ, फिर वापसी में भी वहीं जो है रुखसती हुई। फिर बाद में उसी जगह जो है इनकी जो है वफात हुई और वहीं जो है इनका इंतकाल हुआ, वहीं दफन हुई। मकाम शरफ मक्का के करीबी जो है एक जगह है। इनका जनाजा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया था। और ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला भी लगती है मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है खाला भी हैं। इस तरह इनसे रिवायत जो है 76 हदीसें मरवी हैं। निकाह की वजह जो है ये थी कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है अल्लाह के रसूल के चचा, उनकी दिल जो है मकसूद थी। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ही जो है मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए थे। इसमें समझने की बात यह भी है कि हालांकि अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा हैं
وہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہ کا. اگر یہ بات سمجھ میں آتی کہ میمونہ رضی اللہ کے رسول کا رشتہ لے کر جاتے تو زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی. تو وجہ کیا تھی کہ عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کے چچا, وہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بہنوں ہی ہیں.